Hello students, here the chapter Robinson Crusoe discovers a footprint. This is a footprint. Students, Robinson Crusoe was a sailor and he loved traveling. Once he went on a voyage, he was shipwrecked in a thunderstorm. He somehow survived. In this chapter, we will read the part where one day he discovered a footprint on the sand. And he was really surprised to see that because according to him, he was the only person living on that island. So, let us find out what he did then. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो, जिसका शिप समुद्र के द्वारा नष्ट हो गया था, वो काफी सालों तक वहां रहा और किसी का साथ चाहता था। एक दिन उसने सैंड पर फुटप्रिंट देखे। तो उसके बाद क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं जा रहा था towards my boat, अपनी नाव की ओर, I was surprised, मैं हैरान था, to see the footprint of a man, एक इंसान के फुटप्रिंट को देखकर, ऑन द सैंड, रेत पर किसी इंसान के फुटप्रिंट को देखकर मैं हैरान था। I stood amazed. Amazed means surprised. मैं हैरान खड़ा रहा। I listened. मैंने सुना। I looked around me. मैंने अपने चारों ओर देखा। I could neither hear nor see anything. मैं ना ही कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका वहां। I went up higher to look down. मैं ऊपर की ओर गया, to look down, नीचे देखने के लिए। I went up the shore and down the shore. Shore means bank of the sea. समुद्र का तट। मैंने तट पर भी इधर उधर देखा, but it was no good. But it was of no use. I could find no other footprint but that one. मैंने सिर्फ एक फुटप्रिंट को देखा और मैंने वहां कुछ नहीं पाया। I went to it again to see if there were any more footprints. मैं फिर से वहां गया, टू सी, देखने के लिए कि वहां और फुटप्रिंट तो नहीं है, एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है। इस बात का पता करने के लिए मैं दोबारा वहां गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, यह मेरी गलती नहीं थी, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वहां एग्जैक्टली वास्तव में ही वहां पर एक पैर का प्रिंट था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। टोज, हील, टोज मीन्स पैरों की उंगलियां, एडी, और एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, पैर का हर एक पार्ट था वहां। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर पाया कि वहां वह कैसे आया, वो फुटप्रिंट वहां कैसे आया, मैं इमेजिन नहीं कर पाया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं काफी देर तक वहां खड़ा सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं इससे और कंफ्यूज्ड होता गया, मेरी उलझन और बढ़ती गई।
At last I returned home very frightened. अंत में मैं घर वापस आया very frightened. Frightened means afraid, बहुत डरा हुआ. Looking behind me after every 2 or 3 steps. हर दूसरे और तीसरे स्टेप्स के बाद मैं पीछे देखता रहा. Mistaking every bush and tree to be a man. और bush means shrub, means जो झाड़ी होती है. झाड़ी और पेड़ को इंसान समझने की गलती करता रहा और बार बार पीछे देखता हुआ डरा हुआ मैं घर की तरफ वापस आया. When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, which I called my castle. Castle means fort. I ran inside it. मैं वहां इस तरह भागा as if I was being chased. Chased means ran after. जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था. I do not remember. मुझे यह भी याद नहीं. Whether I used the ladder. कि मैंने सीढ़ी का यूज किया. Or went in by the hole in the rock. या चट्टान में हुए छेद के द्वारा मैं अंदर गया. Which I called the door. जिसे मैं दरवाजा कहता था. I ran for cover. मैं अपनी सुरक्षा में भागा. Faster than any animal could run. जितना कोई जानवर तेज नहीं भाग सकता, मैं इतनी तेज भागकर अपने गुफा में गया. I did not sleep that night. मैं उस रात सो भी नहीं सका. The more I thought about what I had seen, the more I thought. जितना ज्यादा मैं सोचता about what I had seen, जो मैंने देखा, the more afraid I became. मैं उतना ही डरता जाता. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. I thought, मैंने सोचा, it would be one of the savages. Savages means wild people. Wild people of the mainland. मैंने सोचा कि यह फुटप्रिंट उस मेनलैंड पर रहने वाले जंगली लोगों में से किसी एक का होगा. Who had wandered out to the sea in a small boat. जो छोटी नाव के द्वारा समुद्र में इधर उधर घूमता हुआ वहां आ गया. Wandered means went here and there. Luckily, I was not on shore at that time. सौभाग्यशाली कि मैं वहां पर उस समय शोर पर नहीं था. But what if he had seen my boat? लेकिन क्या होता अगर उसने मेरी बोट देख ली होती. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो वह उसने सोचा होगा कि someone lived on the island, कि कोई न कोई आइलैंड पर रहता है. And would soon return with others to kill and eat me. और वह जल्दी ही वापस आएगा दूसरे जंगली लोगों के साथ. To kill, मुझे मारने, और and eat me, वह मुझे मार देगा और खा जाएगा. And so I lay fearful for many days. और इसलिए मैं काफी दिनों तक डर से वहां अपनी गुफा में ही रहा. ले मीन्स लेटना. एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. इन डूइंग सो, ऐसा करने से, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ. एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट मीन्स एग्जामिन करने का सोचा. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट अभी भी जैसे ही मैंने अपना कदम बढ़ाया, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैंने बार बार अपने पीछे देखा. बिहाइंड मीन्स पीछे. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. फ्राइटेंड मीन्स
afraid. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर भी मैं 2 या 3 दिनों तक जब मैं वहां देखता रहा and saw nothing और मुझे वहां कुछ नहीं मिला, I became a little bolder. मैं थोड़ा साहसी हो गया. I decided to go down to the shore again. मैंने निर्णय किया कि मैं फिर से शोर पर जाकर देखूंगा. And examine the footprint once more. और उस फुटप्रिंट का निरीक्षण एक बार फिर से करूंगा. I decided to measure it with my own footmark. मैंने निर्णय किया उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से फुटमार्क से मेजर करने का. As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास आया, I realized that it could not be my footprint. मैंने यह रियलाइज किया, महसूस किया that कि it could not be my footprint, कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता. Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि I had not come to this part, क्योंकि मैं उस पार्ट पर गया ही नहीं था. of the beach, उस तट के उस पार्ट पर मैं गया ही नहीं था. since a long time, बहुत समय से. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, दूसरी बात, जैसे ही मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के साथ रखा, it seemed larger than my own. वह मेरे पैर से भी बड़ा दिखाई दिया. My fear returned. मेरा डर वापिस आ गया. I went home again. मैं घर वापिस आ गया. Believing that, यह विश्वास करते हुए, there was someone there, कि वहां पर कोई ना कोई जरूर है. The island was inhabited. Inhabited means with people or animals living there, कि वो आइलैंड बसा हुआ था. इस विश्वास के साथ वो अपने घर वापिस आ गया. So this is the story of Robinson Crusoe. Read it and write these underlined words in your notebook and learn these words. Okay students, this is all for the video. Thank you.